Please let me know if I'm audible. Anyone? Okay. Before starting today's topics, let's discuss about what we were discussing in yesterday's session. Okay, so I guess we were having few topics left out that I asked you to complete. If someone is having any question in it, that I guess it was dynamic typing, and the second one was slicing, and the third one was designing a normal thing like area of rectangle or something like that without taking user input. And again, same thing, Nikhil, Nitya, please use your user enrollment numbers before names. Okay, so I hope that you have already covered the assignment topics. But before that, have you all installed the Python in your PC? Did you get any confusion in that, any errors in that, or are you using the compatible IDE for your Python or not? All of you have installed the Python? Just raise your hands. That's enough. And if you're having it previously, that is also okay. Okay, cool. Okay. As of now, if anyone of you hasn't installed this online compiler, okay, till more 2 sessions we can work on online compilers, because as of now we will not be working on any libraries and modules. So online compiler is good, but if you want to do the programming in a better way, use the IDE, because in the IDE you will be getting a lot of extensions. In Python, you just need to type a word and then you will get the automatic functions. For example, as of now, there's no need of it. You can be easily use the online compilers, but when we will be working on the functions and if else in conditions, then it will be better that you will be using the IDE. Okay. Now, so let's quickly summarize yesterday's topic. I guess we discussed about Muhammad Ali again. Please be on time. I always start after 5 minutes. Okay. So what I was saying, that previously we were discussing about the variables. What are the type of the variables, and we were discussing about the data types. And in the variables, we discussed a lot of things. So now we were having one topic left, or that is slicing. So let me quickly share my screen. Just a second. I hope you can see my screen. Okay. So slicing is something whenever you have any string. Okay, for example, you have a word. Just a second. Okay. First, if I'm having any string variable, if I'm assigning a equals to like fusion. Okay. Now I want, due to any sort of reason that we want any specific
number or any specific letter or any index numbers, for example 0 1 2 3 4 that we were discussing in the last class, that any string you are using, it always act as an array. Whatever string you are using, that is an array in Python. Why I'm saying it is an array, for example, if you're storing text fusion in a variable, then you are storing at a different values, for example 0 1 2 3 4 5 6 7. How many letters are there, you can count them, and that will act as an array that we have seen in the last class how we can print them. Okay, for example, if you want to print the first letter, you need to put the index number of 0 and then you can easily print it. Okay, now if I want to slice it, slicing is like, look, for example, let me directly print it. The slicing will be of using two things. First, the first index and then the second index. Why I'm saying the first index and the second index, it's like always the slicing will be in two parts. Just a second. Someone please confirm my screen is visible or not. Thank you. Now, if I want to slice this variable a, then how I can do this? First, I have to write the start index. That is, if I want to start from the index number 2, that is my start index. Then I will use the colon. Okay. Then the end index. End index and the start index is the point that we have to check whenever we are slicing, and rest everything is easy. Okay. So what we are getting here, it is removing 0, 1, and it's starting from 2, and it is removing 5 from here. That means 0 1. Let me write it here. 0 1 2 3 4 5. How many letters are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. That means it will be till 6 7 8 and 9. Okay, so till 0 1 it will be removed and it will start from C, and here it will be removed till 5 and it will be starting from normally the USIN, that will be removed. So what I want from this variable, from this string variable, that I want the numbers between 2 and 5. Okay, so I will simply write print a 2 colon and 5, then I will get this CHF. That is known as the slicing. Now there are many types of the slicing. It's not like that this is done. For example, start slicing, end slicing. What is start slicing and end slicing? You can simply put it, and if I'm removing this, this is start slicing. Okay, CHFU. So nothing, it is just removing this TE and everything is same. This is start slicing. Now I will talk about end slicing. This is end slicing, like from the back side. How it is from the back side? Like TECHF, TECHF, USI1 is removed. Okay, so slicing is like getting the numbers in between of that. If you want to get the numbers from Tech Fusion, not the numbers, letters, Tech Fusion between some specific index, you're gonna use start and end index both. If you want to remove only few words from starting, then you're gonna use the start index. If you want to use any letters from the end side, then you will use the end index. Okay, so these are the three types of the slicing. But now, before moving forward, dynamic typing, anything, any doubt in that? That I guess in the last class I asked you to do the dynamic typing. Dynamic typing is nothing but was an easy thing. Like for example, if I'm saying a equals to 5, and now it is the int variable. So if I'm changing the variable in mid between, for example, a equals to, now I'm storing batch, then I'm saying a equals to 5.5. So the Python has the capability to change the variable type in the runtime. While I'm saying runtime, that means when I will start this code, as of now I'm not printing it, but in case if I want to print it, I can simply do this thing, and
if you want to print, you can also print the type of it. Okay, type of the variable. So this is how you can change the type of the variable during runtime. Okay, so this is known as the dynamic typing that we were discussing. And the next thing that I asked you to do, that was area of rectangle and those things. That is simple thing. You just new used to do some operations. Okay, I haven't explored with you the operators till now. Let me start with them one by one. Till now, any confusion in slicing? Anyone? Anyone? Any doubt? Oops. Okay. So, in this, after discussing the slicing, that one thing is left, that is negative indexing. We have seen the middle indexing, that is 2, column 5, start indexing and end indexing. But you have to search for the negative indexing, how we use the negative numbers to get any specific letters from a string variable in Python. Okay, you can note down the today's assignment, that is negative indexing. Now, let me share screen again. Okay. Can you see my screen? Data types or something like that? Okay, it is with me. Now, so this is something that I don't want to waste the time, so I just made a document of it, because if I will be exploring all of them one by one and showing you an examples, the whole hour will be in the whole hour session we will be discussing about the data types only. Okay, so let me just go through it here. These are the different types of the data, how we can explore the data in the Python, and most probably in all of the programming languages that we will be seeing. As of now, we will be only exploring the type, how we use them, how we define them. For example, list, tuple, range, these things, dictionaries and set, everything that we will see one by one. As of now, just I'm giving you the headings. The content of the headings you will get in the other sessions. Okay, for example, text type, string, that we have already explored. Numeric type, we have already explored int, float, and complex. Okay, complex numbers, जब हम मैथ में पढ़ते थे, same those things. Okay, sequence types, this is something like list, tuple, range, and dictionary. This is something important. Why I'm saying it is important, including set as well. List, tuple, dictionary, set, these are the 4 different and vast topics. Okay, and range is also one of the what I would say, that all of the people who are working on the loop, still now they are using the range as getting the numbers of the loop. We will see how we can use the range function to create loops. Set types, everyone is aware about set, but there is another word, frozen set, that we will also explore. Boolean, that you already know. Binary types, bytes, we have seen. Byte array, once you are creating the byte, you can get the byte array. Memory view, same thing. Like I was showing you that bytes can be added, it is as a number. The binary, same, there is something, my memory view, and I've also forgotten it, what is the memory view, so you can get the assignment of it. Okay, because there are many type of the data types in the Python. This is like not a complete list. If you want to explore, there are many data types are available. This is something none type. For example, if you are getting some values where you just want to create a variable, but it doesn't have any specific data, it doesn't have any specific value, then you will create a none type variable. How? Like this. These are the example: string, integer, float, complex. Okay, list.
we will explore it. As of now, just skip list, tuple, range function. Range 6 is like you are getting a variable between 0, 1, 2, 3, 4, 5. How we can use it, we will also see this. Dictionary set ignore as of now. Frozen set ignore as of now. Boolean bytes, this is byte array, yeah, memory byte, view bytes. Now, if you want to create an array of bytes, you can use the number here, like for 5 numbers, 6 numbers, 7 numbers, put it here. This thing you can explore and share with me as well. What is memory view bytes? Okay. After this, operators. These are the types of the operators. Okay, I'm going a bit faster because this is something that I will share with you so you can explore it at your own. Operators, arithmetic operators, assignment operators, comparison operators, logical operators, identity operators, membership operators, and then finally we have bitwise operators. These are the types of the operators that we have in Python, and all of them have around 6 to 7 type of operators inside each heading. So totally, how many we will get? Around, you could say 40, 50 types of operators you can get in Python. Okay. How? If you want to explain the arithmetic operators, if you want to do some arithmetic operation, then you're going to use these arithmetic operators. Positive, negative, multiply, division, basic things everyone know. But here, modulus. Modulus, exponential, and floor division. These are something that we have seen in 12th class mathematics. If you want to get a modulus of any number, for example, you're dividing any number, but you want to use the dividend of that number, then you will use the modulus. Exponentiation, same like this, use the double star and you will get the exponentiation of any two numbers. Floor division, floor values. For example, I want, if I'm getting a number of 2, after dividing two numbers, I'm getting 2.2, but I want the floor value of it. The floor value will be 2. So I will use this floor division. Okay. Now, operators that are assignment. If you want to assign any value to it, that we were already using, x equals to 5, but this we have already seen. X plus equals to 3, that means x equals to x plus 3. If I am writing x equals to 5, then I will be printing x, the value will be 5. But if I'm writing this, then if I will be printing x, then the value will be, what will be the value? 8. भाई यहाँ पे वो तो गई ऊपर वाली बात है, यहाँ पे it will be 6, not 8. Am I right? Yeah. 6 होगा कि 8 होगा? 5 तो तब है ना, look, x equals to 5 if I'm assigning, and even if I'm after assigning, I'm writing x equals to x plus equals to 3. That means first x will be written, then the number will be written. So the number will be 6. Okay. Okay. Now the next thing is here, minus equals to same. Now here, okay. So what पर will be the, हमने 3 की वैल्यू कहाँ से असाइन की x को? sorry? आपने जब बोला x is equal to 6, so that would be 3 plus 3, right? Yes. But but how have we assigned 3 to x already? Look, can you see this line? Okay, Yeah. let me put it here. Can you see my screen? Okay. For example, if I'm writing x equals to 5 as of now, only x equals to 5, and then I'm writing print x. This is how we can print the any variable. Okay. It is writing x equals to 5, but in the next line, even if I'm not defining anything, I'm simply writing x plus equals to 5. Okay, look what happened
whenever we are assigning the variables like this, let me just print it, then I will show. Sorry, sorry. Before assigning the value, okay. So you are saying the same thing, like I was not assigning the number. Exactly. Okay. If this was the question, then obviously it is correct. Like after assigning the number here, then plus equals to 5, the value of x will be added like this. Okay, this was the line. Okay, so you're mentioning the same thing here. Yes, sir. Okay, now let me share my screen again. Okay, same here, that x equals to x multiplied by 3, that any value you will be giving, it will be divided by minus 3. Okay, and divide and everything, like if you are using all of the operators which you were using here and you are using equals to after it, that means that number will be written, for example any number that you are giving to the variable, and then the same operator will be added, and here subtracted, multiply, divide, modulus, and then same chill here. These are the variables that we rarely use, but you can also try all of them. Okay, like whenever you want to print x equals to 3, you can simply write this, and then x equals to 3, print x. That means you need not to write first. For example, you have to assign the variable value. Okay, if I want to print x equals to 3, then first I will assign the value x to 3, and then I will use this print x, then I will be able to print any value. For example, let me put it here again. Like this. If I don't want to write two lines for printing 3 or any number, or printing any after operation, for example 3 plus 3, if I want to print 3 plus 3, 3 plus 4, or anything, instead of writing two lines, first line will be defining the variable, then giving the print function. Without it, we can use this function with colon and equals to print the number directly. Okay, this is useful. Many times when you want to save the lines, when you want to save the code, you want to reduce the lines of the code storage dividing, then you can use this thing. Okay, now if I'm going too much fast, I know I am almost removing all topics one by one. तो मुझे बोल देना if the new beginners are having any problems. Look, why I'm doing this, because ये थोड़े ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप खुद से डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तब भी समझ आ जाएगा, देखने प्लस साथ में एग्जीक्यूट करना भी. बट आगे जो टॉपिक्स होंगे, अगर यहाँ पे मैं टाइम नहीं बचाऊंगा तो फिर वहाँ पे टाइम कम बचेगा, वहाँ पे मुझे टॉपिक्स स्किप करने पड़ेंगे. ओके, सो ये सारी जितनी भी चीज़ें वो मैं आपको ड्राइव जो लिंक ग्रुप में अपडेट कर दी होगी, तो वहाँ पे मिल जाएगा. ओके, सो नाउ कमिंग बैक हियर, comparison operators are also there. Like if you want to compare two numbers in condition, like for an example I'm saying equals to, when we will be using the if else condition, we will be saying x equals to 3, y equals to 2. If x is equals to y, then print this. Okay, if that will be true, it will be printed, otherwise it will not be printed. Or if I want to say, for example, anytime, like it's not like giving the values to each other. For example, initially we were saying that if you want to transfer the value
transfer the data of two variables to any other variable, for example, x equals to 3 and y equals to 4, and I want to say x equals to y, then the data 3 will be shifted to y. But here we are doing the comparison. Anytime when you are comparing two numbers, we have to use double equals to. Okay, same goes for not equal, greater than, less than, greater than or equals to, less than or equals to, that we are already aware about these things. Okay, now logical operators, and, or, and, not. If I'm using and between these two things, that means this x, okay, let me just write it, or okay, let me explain it here only. If I'm saying x is less than 5 and x is less than 10, and I'm using and both between both of them, that means all both of these two conditions should be true. Okay, what I mean, let me write it here. If I'm saying here x equals to 3, okay, if I'm saying x equals to 3, then this condition is satisfied, this condition is also satisfied, because 3 is less than 5 and 3 is less than 10. Then if, as of now I haven't shared the information regarding the if and else function, so I'm not writing that. Otherwise, when we will be checking if this condition is true or not, for any time when we have to check either the variable is uh, getting any values, for example, we will be having some function, we will be getting some values in any variable. As of now we have 3, and we have to check is it less than 5 and less than 10, then we will use the and function. Both of the conditions should be true. Here, if any of the condition is true, for example in or, then it will work. Okay, let me write it here. Otherwise, I will not be able to explain it. For example, if I'm simply writing x equals to 3 and then I will be writing this thing. As of now, I'm not following the syntax, so don't worry about it. I'm writing this. Okay, and then I'm saying print. Okay, okay, so this print okay will run only if the condition will be true. Why? Because I'm saying here, just ignore this if, just think it is normal word as of now. Okay, x equals to 3, that means x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3. अब मैं चेक कर रहा हूँ कि जो 3 है वो 5 से छोटा है और 10 से छोटा है. अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये लाइन वर्क करेगी, अदरवाइज ये लाइन वर्क नहीं करेगी. फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग 11, तो ना तो ये ट्रू हो रही है ना ये ट्रू हो रही है. ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ से लेस देन हटा दिया, मैं यहाँ लिखूंगा ग्रेटर देन. अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा तब ये ट्रू होगा. ओके, वर्क करेगा. क्यों? क्योंकि 6 इज greater than 5 and less than 10. But if I am writing 4 here, this print will not be working because 4 is not greater than 5. तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स. तो ये वाली लाइन वर्क नहीं करेगी. बट इन केस ऑफ और, दिस प्रिंट विल बी वर्किंग. क्यों? क्योंकि और में क्या होता है कि कोई भी एक कंडीशन अगर वैलिड होगी, ये वाली कंडीशन वैलिड नहीं है, कोई बात नहीं, बट अगर ये वाली कंडीशन वैलिड है तब भी ये वाली लाइन क्या करेगी? वर्क करेगी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंड. और नॉट. नॉट क्या होता है कि जो भी आप लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेस देन 10, अगर आउटपुट ट्रू आएगा तो ट्रू का रिवर्स होकर फॉल्स मिलेगा आपको. अगर फॉल्स आ रहा होगा आउटपुट, देन फॉल्स का रिवर्स होकर क्या मिलेगा? ट्रू. ठीक है, नाउ कोई डाउट यहाँ पे? Any questions? No, sir. Okay. Look, identity operators, membership operators, again, like for example, if you're using x is y, if both of the variables is same,
again, this is your assignment. You have to give some example to it, and you have to check how this variable, oh sorry, how this operator work. I'm saying if both of the variable is the same thing, like for example both of the variables are, दो डब्बे हैं, दोनों डब्बों में अगर एप्पल है, then x is y because both of the variable is same. लाइक आप ऐसे समझ लो कि ये y है, ये तो मतलब पूरा डेटा ही सेम होता है. अभी ये वेरिएबल की भी बात नहीं करेंगे, अगर हम एरे की भी बात करेंगे तब भी हम ऑपरेशंस में यूज करेंगे, तो सारा डेटा सेम होना चाहिए, देन वी कैन यूज इज. अगर इज नॉट का यूज करें दैट मीन्स ऑल ऑफ द डेटा आर नॉट सेम, कोई भी डिफरेंस होगा तो वहां पे कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, x इज नॉट y. x is y, that means all the variables, all the values of that variable is same. Okay, membership operators most used things. Okay, हर जगह हम यूज कर रहे होते हैं x in y, x in range, y in range, 6 in range. If you want to use, कई बार होता है कि जब हम रेंज फंक्शन देखेंगे फॉर लूप में, बट मैं रेंज फंक्शन से स्टार्ट नहीं करता क्योंकि एक अलग ही फंक्शन हो जाता है. एज आई टोल्ड यू दैट कभी भी अगर हमें एक एरे बनाना होता है किसी और लैंग्वेज में तो हमें अलग से एरे डिफाइन करना होता है, बट इन केस ऑफ द पाइथन द स्ट्रिंग वेरिएबल ऑल्सो एक्ट एज एन एरे. ठीक है, तो अगर मैं कभी प्रिंट करूंगा, देखेंगे कैसे हम लूप में प्रिंट करते हैं और कैसे हम इफ में कंडीशन लगाते हैं, तो वो हम देखेंगे. देन वी विल बी यूजिंग द मेंबरशिप ऑपरेटर्स. ठीक है, यहाँ पे तो लिखा है कि रिटर्न्स ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद स्पेसिफाइड वैल्यूज इन प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट. बट ये तो हो गया कि आप सीधा दो वेरिएबल को कंपेयर करने जाएंगे तब. बट जब हम किसी फंक्शन में इन ऑपरेटर या फिर मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं, देन वी कैन जनरेट द पैटर्न. ठीक है, पैटर्न जनरेशन के जो कोड आपने सी में करे होंगे या सी प्लस प्लस में करे होंगे, यहाँ पे भी अगर आपको पैटर्न बनाने होंगे कहीं भी, तब हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज करके आसानी से बना सकते हैं. ठीक, अब ये है हमारा प्रेसिडेंस ऑर्डर. जो हम मैथ में पढ़ते थे ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कुछ एड ऑन चीज़ें हो जाती हैं कि कहीं पे आपको बहुत सारे ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले पैरेंथेसिस आप काउंट करेंगे, उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन, देन उसके बाद देखोगे कहीं पे कुछ प्लस तो नहीं, यूनरी प्लस और यूनरी माइनस, अगर इसका मतलब नॉर्मल +1 +- एंड बिटवाइज नॉट द नेगेटिव ऑफ दैट, मतलब फॉर एग्जांपल रिवर्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू. ओके, तो उसके बाद ये आता है देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस, एडिशन, सब ये तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है, यहाँ तक ही हम यूज करते हैं. ये भी नहीं, जनरली यही चीज़ें आपको मिलेंगी. एंड देन पैरेंथेसिस, उसके बाद इतना कुछ नहीं होता है. एडिशन सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में, देन फिर आता है बिटवाइज लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट, जब भी हमें नंबर शिफ्ट करना होता है, वेरिएबल शिफ्ट करना होता है, तब bitwise and bitwise or all of these things you can practice one by one and explore by yourself. but ये लाइन हमेशा हमें याद रखनी होती है कि कई बार ये पूछा जाता है कि अच्छा तब तो ठीक है जब आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स मिल रहे हैं, कि आपको पैरेंथेसिस भी लिखा है, मल्टीप्लाई भी लिखा है. बाय द वे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा है ना, कि कहीं पे लिखा है जैसे पैरेंथेसिस में 3 × 2 + 5 डायरेक्ट नंबर लिखे होते हैं मैथ में, फिर हमें बोला जाता है कि पहले पैरेंथेसिस को हटाओ, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, सिमिलरली जब आपको कोई वैल्यू सॉल्व करनी होगी या फिर कोई दो वेरिएबल्स होंगे, उनमें अलग अलग वैल्यूज होंगी, उनको चेक करने होंगे, देन आप क्या यूज करोगे, ये प्रेसिडेंस ऑर्डर जो होता है वही फॉलो करेंगे. बट कई बार क्या होता है कि जो दो ऑपरेटर्स हमारे पास हैं, अगर उन दोनों का सेम प्रेसिडेंस है, ठीक है, कि मान लो दोनों में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, x + y + z है, दोनों में क्या है, प्लस आ रहा है, दोनों का प्रेसिडेंस क्या हुआ, सेम हुआ, तब हम क्या करते हैं, द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट से स्टार्ट होके राइट तक आप उसको इवैल्यूएट करेंगे. यानी कि अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, वेट, अगर मैं यहाँ नॉर्मली लिख रहा हूँ x + y + z, यहाँ पे क्या होगा, और ड्यू इनमें अलग अलग वैल्यूज है और मुझे इनको प्रिंट करना है. ठीक है, तो अब यहाँ पे y + z पहले होगा, उसके बाद x ऐड होगा. ठीक है,
ये तब होता है जब हमारे प्रेसिडेंस क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। टिल नाउ सो फॉर एनी कंफ्यूजन? No, sir. थैंक यू, एटलीस्ट बोलने की हिम्मत कर लो भाई, बोल लिया करो यार कम से कम, ऐसा लगता है कि बोल ही गए सारे। ओके, हम सब ओके, थैंक यू। लुक, इफ यूर बिगिनर अगेन ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि जो हमारी अटेंडेंस आज कम है वो इसी वजह से कम है क्योंकि हम बेसिक्स कर रहे हैं। बट अगर आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं पाइथन को और स्टार्ट ही करा है, क्योंकि आई गेस अराउंड 3 to 4 पीपल वर हैविंग द नॉलेज ऑफ पाइथन जब मैं स्टार्ट में आपसे पूछ रहा था, बाकी सारे हमारे यहाँ बिगनर्स ही हैं, मतलब उतने भी नहीं बट मोस्ट ऑफ देम आर बिगनर्स। तो देखो, हमें होता क्या है कि ये सारी चीज़ें अभी ना बहुत छोटी छोटी लगती हैं कि ये तो वेरिएबल्स हैं या फिर ये तो हाँ, ये सब करेंगे कैसे, और इतने सारे ऑपरेटर्स हैं ये कैसे याद होंगे। तो इनको ऐसा नहीं होता कि बैठ के आप याद कर रहे हैं, मैथ में क्वेश्चन पेपर आने वाला तो आपको याद करना है। दीज आर द थिंग्स दैट यू विल गेट बाय द प्रैक्टिस। और ऐसा नहीं कि सारे के सारे वेरिएबल्स आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं और सारे वेरिएबल्स पे क्वेश्चन आएंगे। जब आप एज ए प्रोग्रामर वर्क कर रहे होते हैं तो सॉरी, जब आप एज ए प्रोग्रामर वर्क कर रहे होते हैं तब आपके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। बट आपको ना यूज़ कैसे करना वो आना चाहिए। तो मेनली जब आप ऑपरेटर्स आप देख रहे हैं जैसे 60 टाइप हो गए, 40 टाइप हो गए या 50 टाइप हो गए, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर नॉट लाइक यू हैव टू रिमेंबर। बस आपको उनके यूज़ केसेस पता होना चाहिए, बाकी जो बेसिक बेसिक्स होते हैं ऊपर ऊपर से वही हमें याद रहते हैं, बाकी याद भी नहीं होता कि ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं क्यों, ठीक है। बट प्रैक्टिस में आप रखो तो आसान हो जाती चीज़ें, ठीक है। अब नाउ आफ्टर दिस आई गेस इन द लास्ट क्लास आई वाज आस्किंग कि सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स, लेट मी share my screen. Okay, look now, जब कल हम डिस्कस कर रहे थे कि डबल कोट्स लगा के भी हम कोई टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं और सिंगल कोट लगा के भी हम टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कोट्स की जरूरत क्यों होती है? तो बेसिकली मेन इसका जो ये रीजन होता है हमें ऐसे लिखने का, उसका होता है कि जब हमें कोट्स के अंदर कोट्स प्रिंट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल अब मुझे चाहिए कि टेक्स्ट फ्यूजन के पास भी कोट हो एक, ठीक है। तो जब मैं इसको यूज करूंगा देन व्हाट आई विल बी गेटिंग, मुझे यहाँ पे भी एक कोड मिल जाएगा। मुझे अगर डबल कोट में प्रिंट करना हो वैसे देन आई विल राइट इट, सिंपल थिंग, इतना कुछ आता नहीं है था जो मैं कल ऐसे बना रहा था। तो जब हमें कोड्स के साथ कोड्स यूज़ करने थे तभी हम इसका यूज़ करते हैं, बाकी और कुछ नहीं। इसीलिए एंड आपको क्योंकि लगता है ना कि सिंगल कोड है तो फिर डबल कोड की बात क्यों थी। कई बार होता है जब हमें कोड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम कोड यूज़ करेंगे तो रिमूव हो जाएंगे अपने आप ही, क्योंकि वो एक फंक्शन होगा प्रिंट के अंदर, ठीक है। नाउ आफ्टर इट वन मोर थिंग, अगर हम कोड डिस्कस कर ही रहे हैं, एक नया टॉपिक ला ली, तो एक और चीज़ होती है ट्रिपल डबल कोट्स। इसे पता है ट्रिपल डबल कोट्स का क्या यूज़ होता है? एनीथिंग, किसी को पता है? देखो अभी मैं बस आपको इतना बताऊंगा कि ट्रिपल डबल कोट्स क्या होता है, इससे मल्टीपल लाइंस प्रिंट कर सकते हैं। होता क्या है कि आपको जब कोई पैराग्राफ आप प्रिंट करने जाओगे, आपने एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा बट प्रिंट में वो सारा कैसे लिख जाएगा, सारा एक लाइन बाई लाइन, लाइन बाई मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपके अगर लाइन में आप स्पेस दे रहे हो, लाइन चेंज करो तो लाइन चेंज होके आएगा, वो एक ही लाइन में ऐड होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा अकॉर्डिंग टू योर डिस्प्ले, जहां तक वो लाइन जा सकती है वहां तक ऐड हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट पे शिफ्ट होगा। इट्स डिपेंडिंग ऑन योर कंपाइलर, ठीक है। बट इफ यू वांट दैट आई वांट टू प्रिंट इट इन द नेक्स्ट लाइन विदाउट यूजिंग स्लैश एन और एनी अदर थिंग फॉर चेंजिंग द लाइन,
you can directly use this triple double quote to print in the next line. कैसे होता क्या करता है वो आप खुद देखना, असाइनमेंट में ये भी पॉइंट कर लो, हाउ टू गेट द आउटपुट फ्रॉम थ्री डबल कोट्स। इसका हम यूज कैसे करते हैं ये आप खुद ट्राई करके देखना। ओके, अभी पीसी पे कौन है? लाइक ऐसा तो नहीं कोई फोन पे ज्वाइन करके बैठा हो, सारे लोग पीसी से ही ज्वाइन है। Okay, Ekta Parikh. Okay, Ekta Parikh, can you share your screen if you're using any compiler right now? Try this thing. कोई भी या फिर और भी कोई, just share the screen and try this thing. कोई करेगा screen share? Just raise your hand if you want to share the screen and just try this triple double quotes. आसान सी चीज है. Okay, let me pick someone. ऐसे तो सिमरत सिंह आप ही करिए. Are you using it? ठीक है, ठीक है। Try करिए. शेयर स्क्रीन एंड देन पुट, ऐसा नहीं पूरे पैराग्राफ लिखने हैं, बस लाइन चेंज करके देखिएगा हो रहा है क्या। 1 मिनट। ओके ओके, टिल देन ही इज शेयरिंग द स्क्रीन। जो कल के जो हमने पढ़ा था अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कोई क्वेश्चन है कुछ भी? हम बैकस्लैश से भी अगर हमें डबल कोट्स लिखने होंगे उससे भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ, बैकस्लैश से भी कर सकते हो, बट अगर डबल कोट्स की बात करेंगे थोड़ा कूल लगता है ना, क्योंकि ट्रिपल डबल कोट्स बहुत कम लोग यूज करते हैं लाइन चेंज करने के लिए, दैट्स व्हाई। भाई स्क्रीन शेयर कर रही थी, कहाँ चला गया भाई? कंपाइलर अलाउड अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं है। ओके ओके ओके। Okay, try now. Simrat, now you can try. आ रहा है? आ रहा है। ओके, तो ये तो हो गया एक सिंपल वर्ड, ये हेलो वर्ड प्रिंट करेगा। ट्राई टू पुट डिफरेंट लाइन। लाइन कैसे? आप कॉमा लगाइए और एंटर प्रेस करिए, कॉमा प्लस एंटर, डिफरेंट लाइन में आ जाइए। अच्छा एक काम करिए, इसको हटा दीजिए, प्रिंट हेलो वर्ड, ये थोड़ा अजीब सा लगेगा। एक वेरिएबल क्रिएट करिए, उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करिए, x इक्वल्स टू स्ट्रिंग वेरिएबल एंड ट्रिपल डबल कोट्स। हो गए ट्रिपल, ओके। अब ट्रिपल डबल कोट्स के अंदर अब कॉमा लगाइए, हेलो कॉमा एंटर, नेक्स्ट समथिंग लाइक राइट समथिंग एल्स, नेक्स्ट कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कुछ भी प्रिंट कर दो। नेक्स्ट कॉमा, ट्राई एटलीस्ट 2-3 लाइन्स। Now try to print x. Let's see what will be the. Okay, so with the help of this, you can get the output in the different line. Okay, thank you, Simple. You can stop sharing screen. Okay. Look, it will be better कि मैं इतना टाइम तो बीच में नहीं देता कि आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहें, बट नोट करना आसान होता है, नोट तो कर दीजिए जैसे कि बाद में प्रैक्टिस कर पाएंगे। Again, if you're beginner, then obviously it is required. Let me share my screen again.
look, after the variables, data types, operators, there is one more thing, that is यूजर इनपुट. ठीक है, आपको याद होगा कि जब हम डिस्कस कर रहे थे कि जब पाइथन होता है, पाइथन में हमें वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती. फॉर एग्जांपल इफ आई एम यूजिंग एनी वेरिएबल, फॉर एग्जांपल int, float, string, anything, I can simply write x equals to 5 and Python will automatically it will define that it is an integer variable. फिर int की ज़रूरत क्या पड़ती है, float की ज़रूरत क्या पड़ती है, क्यों हम int, float या इन वर्ड्स को यूज़ करें पाइथन में, क्योंकि पाइथन को तो अपने आप ही पता है कौन सा वेरिएबल कौन सा है. तो 2-3 रीजंस होते हैं जिसमें हमें int, float और कोई भी वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है. एक तो होता है टाइप कास्टिंग. टाइप कास्टिंग पता है क्या होता है? इजी थिंग, कोई तो बोलो. कि आप फोर्सफुली एक वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज कर दो. Exactly. For example, if I have let me simply go to on the screen कि अगर मैं बोलूँगा कि x equals to क्या है 2.234, तो अब ये कौन सा टाइप है? फ्लोट. float. फ्लोट. तो अब ये क्या है? फ्लोट. अगर मुझे चेक करना देन आई विल सिंपली राइट हियर टाइप एंड देन आई विल राइट x. ठीक है, तो मुझे क्या यहाँ पे आएगा? क्लास फ्लोट है. बट मैं अभी यहाँ प्रिंट करूँगा x. लेट्स सी, अगर मुझे x प्रिंट करना है देन आई विल गेट द x इक्वल्स टू 2.2234. बट होता क्या है कि कई बार हमें चाहिए कि हमने ना एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया कोड में कहीं ऊपर, बट उसका यूज भी हो गया ऊपर ही, बट हमें अब चाहिए x एज अ फ्लोट. x फ्लोट था, अब हमें चाहिए x एज अ इंटीजर. व्हाट आई एम सेइंग हियर कि नेक्स्ट मैं लिखूंगा x इक्वल्स टू int 2.234. ठीक है, तो कभी भी अगर आपको फोर्सफुली कभी भी डेटा चेंज करना होता है देन आप क्या यूज करते हैं? टाइप कास्टिंग का. ठीक है, फ्लोट से इंटीजर लेने में या फिर इंटीजर से स्ट्रिंग भी चेंज करने में, तब भी आप इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इसके बाद आप इसको प्रिंट करके देखेंगे, तब आपको यहाँ पे आएगा 2 इंस्टेड ऑफ 2.234, क्योंकि इंटीजर में 234 पॉइंट के बाद कुछ नहीं होता है. एक तो ये रीजन होगा, ये तो बेसिक चीज होगी टाइप कास्टिंग. दूसरा एक होता है सबसे ज्यादा int, float और उसको यूज करने का रीजन इनपुट फंक्शन में. इनपुट फंक्शन क्या होता है कि जब आपको यूजर से इनपुट लेना होता है, लाइक जब आपको मैं बोल रहा था कल कि एरिया वगैरह निकालने के लिए आप पहले ही वैल्यू दे देना, क्योंकि आप इनपुट नहीं दे पाएंगे. सबसे जो फर्स्ट प्रोजेक्ट कराया जाता है कैलकुलेटर बनाने वाला, कि पाइथन से कैलकुलेटर बना के दिखाइए, देन हमें उसमें क्या यूज करना होता है? ऑपरेटर्स और इनपुट वेरिएबल्स. ठीक है, और आई एम सेइंग हियर x इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिखूंगा इनपुट. इनपुट के बाद मैं लिखूंगा ओके, वो बाद में करेंगे. मैं ऐसे ही नॉर्मली एक वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू. ओके, अब लुक, एरर आ गया. कोई बताएगा क्या एरर आया? एनीवन? इंडेंट. कौन सा इंटेंट? आपने ये शायद x आगे लिखा है. Look, again same thing. Whenever we are using these type of online compiler, यहाँ पे हमें इंडेंट पता ही नहीं पड़ता, इसलिए आप कोई जुपिटर वगैरह यूज करेंगे तो वहाँ पे हमें इंडेंट पता पड़ता रहता है, क्योंकि आपके ऊपर ही वहाँ पे लाइंस होती हैं, तो आपको इंडेंट पता पड़ेगा. सेम आप एक्सटेंशंस यूज कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो VS कोड में, जहाँ पे आपको इंडेंट पता पड़ जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू देना होगी मैं इसको दे दूंगा. ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे कुछ भी वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर कर दूंगा, और वो वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी? हमारे वेरिएबल x में. ठीक है, बट ये तो हो गया. अच्छा चलो पहले मैं एग्जांपल कर ही देता हूँ. फॉर एग्जांपल एक मैंने ये लाइन लिखी, देन मैंने लिखा y इक्वल्स टू इनपुट अनदर वैल्यू. अब मैं लिखूंगा वैल्यू वैल्यू 1. ठीक है, देन फाइनली आई विल राइट प्रिंट
x प्लस वाई। अब मैं इसे रन करूंगा जब वैल्यू 1 मैं एंटर करता हूँ 2, वैल्यू 1 सॉरी वैल्यू फर्स्ट सेकेंड एंड नेक्स्ट इज थर्ड। आउटपुट क्या आएगा हमें? 2 3 2 3 पक्का? 5 क्यों नहीं आएगा? 5 भी तो आना चाहिए। क्योंकि ये अभी इसको अच्छा स्ट्रिंग की तरह आप रुकिए देखना है। आप रुकिए आप रुकिए आप रुकिए। अब बाकी लोग बताइए 5 नहीं आएगा क्या? क्योंकि जब मैं 2 ऐड ही तो कर रहा हूँ, एडिशनल ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, एडिशन होना चाहिए, 2 + 3 = 5 होना चाहिए। कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? सर वो वैल्यूज एज अ स्ट्रिंग सेव होगी। स्ट्रिंग क्यों? एज ए स्ट्रिंग क्यों होगी? अच्छा ठीक है, अगर मुझे स्ट्रिंग्स हटाना होगा फिर क्या करूँगा? मुझे नहीं 5 भी चाहिए, तो 5 अगर चाहिए होगा तब मैं क्या करूँगा? बोलिए बोलिए। As of now, if I'm just writing two values and I'm writing 2 here, then value 1 is 2 and code execution is nothing. अब ये क्या हुआ? मैंने बस एक बार एंटर हिट किया, आप 2 3 बोल रहे थे। अच्छा चलो ये बात में देखेंगे। एज ऑफ नाउ जस्ट इतना देखते हैं कि अगर हम 2 3 लिखते हैं उसके बाद 23 हमारे पास आउटपुट आ जाता है। क्यों? आप लोगों ने बोला स्ट्रिंग। एक्चुअली देखो पाइथन में दोज हु नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग, पाइथन में कुछ चीज़ें डिफॉल्ट होती हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे डिफाइन नहीं करोगे कि आप इनपुट में क्या वैल्यूज ले रहे हो, दैट विल बी पुट इनटू स्ट्रिंग। अपने आप ही पाइथन सेट कर देगा कि वो वैल्यू कहाँ जानी है, वो स्ट्रिंग वेरिएबल में जानी है। इसलिए जो आप वैल्यूज यहाँ डालोगे वो एज प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे एडिशनल ऑपरेटर क्या करेगा? प्रिंट हो जाएगा। जब हम कल देख रहे थे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रिंग, हाई मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन वी वर प्रिंटिंग हाई 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 3 टाइम्स। तो जो भी स्ट्रिंग होते हैं, स्ट्रिंग में भी जो एडिशनल सब्ट्रैक्शन या जो भी ऑपरेटर्स होते हैं वो यूज हो जाते हैं। एंड 2 and 3 विल बी रिटन साइड बाय साइड, इसलिए आउटपुट हमें 23 दिखेगा। अगर हमें इसको खत्म करना होता है देन वी हैव टू स्पेसिफाई कि हम कौन सा वेरिएबल एज एन इनपुट ले रहे हैं। तो अगर मुझे इनको ऐड करना है, सॉरी 2 नंबर्स को ऐड करना है, देन आई हैव टू स्पेसिफाई कि जो वैल्यूज मैं इनपुट में ले रहा हूँ वो क्या है? नंबर्स हैं। उनको आप ऐसा स्ट्रिंग मत समझ लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ ABC एंड उसके बाद मैं DEF लिख रहा हूँ, तो आप लिख देना 2 + 3 करने के बजाय ABCDEF। इसको अवॉइड करने के लिए हमें पहले क्या डिफाइन करना पड़ता है कि हम जो इनपुट ले रहे हैं वो कौन सा है। वो हमने लिखा है इंट। फ्लोट लिखेंगे तो फ्लोट, स्ट्रिंग लिखेंगे तो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो बाय डिफॉल्ट भी होता है, बट इन केस अगर आपको स्ट्रिंग भी लिखना है तो स्ट्रिंग भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम यूजर से क्या लेते हैं? इनपुट लेते हैं। ठीक, कोई भी आपको इनपुट लेना होता है तब आप यहाँ से इनपुट ले सकते हैं। तो अब इसका यूज करके आप ना एक कैलकुलेटर बना लेना, बेसिक सा। कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे? आप 2 आपने ले ही लिए हैं। अब इसके बाद प्रिंट x + y, x × y, x / y, ऐसे 4-5 चीजें लिख लेना। इफ कंडीशन का यूज करते हैं जब कैलकुलेटर बनाने में, तब अच्छा वाला बन जाता है। बट फिलहाल के लिए ऐसे ही 5 6 7 ऑपरेटर्स यूज करके हम सारा एक ही बार में क्लिक करने पे डेटा ले लेंगे। तो वो भी एक बेसिक कैलकुलेटर हमारा क्या बन जाता है कि आप जितने भी वैल्यूज देंगे वो यहाँ पे एज एन इनपुट ले लीजिए, ऑपरेटर्स यूज कर लीजिए और एक बेसिक कैलकुलेटर आप बना सकते हैं। ठीक है, छोटा सा कुछ नाउ नेक्स्ट थिंग। Any thoughts so far? कल कोई क्वेश्चन था, कहाँ जो इनिशिएट कर रहे थे प्रोग्रामिंग, इज एनीवन देयर? जिन्होंने मतलब बस प्रोग्राम इनिशिएट ही कर रहे थे, उनको किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक? ओके चलिए ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आता है हमारे डेटा के टाइप में। एक आते हैं जब हम डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जाते हैं तब कि हम कोई भी डेटा अगर हमारे पास है तो उसको स्ट्रक्चराइज कैसे करेंगे। तो उसके लिए बहुत सारे वेज होते हैं हमारे पास लिस्ट होते हैं, फिर टपल्स होते हैं, सेट्स होते हैं, डिक्शनरी होती है,
एंड ऑलमोस्ट अगर आप एक बार देखने चाहेंगे ना तो आपको लगेगा कि सेम ही, तो फर्क क्या, थोड़ा थोड़ा फर्क है, किसी में ओपन ब्रेसेस है, किसी में क्लोज, सॉरी किसी में स्मॉल ब्रेसेस हैं, किसी में कर्ली ब्रेसेस हैं, किसी में स्क्वायर ब्रेसेस हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम अब और बची हैं, उससे ज़्यादा बेसिक्स हम नहीं देखेंगे, उतना इनफ हो जाएगा, वरना तो फिर हमें पाइथन करने में पूरा महीना लगेगा ही लगेगा, जैसा मैं बोल रहा था। तो लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, सेट्स, ये अगर आप एक बार पढ़ के आएंगे तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा ओवर को ऐसे स्क्रॉल करना। बट अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो मैं एक बार उनके एग्जाम्पल्स दिखा दूंगा, अगर आप पढ़ लेंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा उनको बताना, ठीक। तो आज के असाइनमेंट में क्या था, कोई एक मेंशन कर दे अगर जैसे नोट्स लिए हों। अरे भाई नोट्स लिए हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग थी, मेमोरी व्यू था, अम, ये ट्रिपल डबल कोट्स का था थोड़ा, और कैलकुलेटर का था। वापस से बोल दो, वरना मुझे नहीं सुना पड़ा यहाँ। मैंने कहा कि कैलकुलेटर का था, ट्रिपल डबल कोट्स का था थोड़ा, मेमोरी व्यू था, और नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लेना खुद से। और दूसरा आप लिस्ट, टपल्स और सेट्स और डिक्शनरी कैसे हम उनको लिखते हैं वो देख लेना। फिर जो डिफरेंस होते हैं, क्योंकि आप मान के चलिए जब भी आप पाइथन का कोई बेसिक एक इंटरव्यू देने जाते हैं ना पाइथन डेवलपर का, तो वो आपसे सबसे पहले पूछते हैं अच्छा बताओ लिस्ट और सेट में डिफरेंस क्या होता है, या फिर लिस्ट और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस होता है, डिक्शनरी और टपल्स में क्या डिफरेंस होता है। दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, फॉर श्योर पूछा जाता है कि अगर पाइथन के उनको बेसिक्स किसी को क्वेश्चंस, ऐसा होता है ना कि अब जैसे कि मुझे किसी का इंटरव्यू लेने जाना है तो मैं पहले खुद अपने नोट्स भी बनाता हूँ कि मुझे क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, डायरेक्ट हम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो बेसिक कैटेगरी, मॉडरेट कैटेगरी एंड टफ कैटेगरी, तीन टाइप डिवाइड करते हैं एज एन हायरिंग इंटरव्यूअर, या आप जो भी आप समझते हैं टेक इंटरव्यूअर। तो हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं कि हम ऐसे ऐसे करके लेवल में डिवाइड करने के बाद हम उनको शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट लेवल्स पे। तो बेसिक लेवल में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि अच्छा कि टपल बता दी, पूछ लेंगे आपसे, लिस्ट क्या होता है वो पूछ लेंगे, आपने सिंटेक्स तो बता दिया इनका कि ये ऐसे ऐसे लिखते हैं, अच्छा अब ये बताइए कि लिस्ट को टपल में कंपेयर करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। क्या फीचर्स है लिस्ट में जो टपल्स में नहीं है, टपल्स में क्या फीचर्स है जो लिस्ट में नहीं है, डिक्शनरी में क्या है जो सेट में नहीं है, सेट में क्या है जो डिक्शनरी में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं म्यूटेबल, ऑर्डर, इंडेक्सेबल, ये तीन वर्ड याद करके करके हम लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, चार चीज़ों में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बस कैसे करते हैं, क्या करते हैं वो हम कल देखते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल नॉट एक्सटेंड टू मच टुडे। और कल संडे है तो संडे सेशन रखना है, क्योंकि मैं 6 डे सेशन में बिलीव करता हूँ, एक दिन प्रोजेक्ट या फिर प्रैक्टिस के लिए छोड़ना चाहता हूँ। तो ठीक है हम संडे रख लेते हैं, बट होपफुली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ओके 31st भी आ रहा है, 1 जनवरी भी आ रहा है, तो 31st या फर्स्ट, या तो 2 दिन हम ऑफ रखेंगे या फिर किसी एक दिन ऑफ रखेंगे, ठीक है। 2 दिन या एक दिन, 2 दिन वाले ज़रा थम्स अप करो। अरे वाह, अरे वाह, 2 दिन चाहिए, ओके दैट्स कूल, ठीक है। 31st को और फर्स्ट को हम रखेंगे। आपको मैं आज क्या है 28, ठीक है 28 है हमारे पास, 29 एंड 30 को हम सेशन रखेंगे। कल हम कोशिश करेंगे कि हमारे सेशन 1.5 आवर का हम कर लेंगे, तो जैसे कि और भी चीज़ें होंगी हम डिटेल्स में ख़त्म कर देंगे, फिर हम इफ एल्स फंक्शंस एंड लूप्स क्रिएट कर लेंगे। तो आराम से 29 तक हमारी 30 तक इफ एल्स लूप्स फंक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप आराम से 31st और फर्स्ट को प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। That's it from my side. If you have any questions, you can ask. Otherwise, हम मिलेंगे कल, और प्लेलिस्ट वहाँ पे बनी हुई है, अगर आपके कोई सेशंस रह जाते हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, ठीक। ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Thank you. थैंक यू।